महम कृष्ण अनुग्रहेण अश्रवणं मनोहरा ताः श्रद्धया मे अनुपादं कृष्णवतः प्रियश्रवस्य अंगा ममाभवद्रुचिः. O Vyasdev, in that association, now that is Tatra, that is Unki, sages ki association, right? So in that association, and by the mercy of those great Vedantists, I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna, and thus listening attentively, my taste for hearing of the personality of Godhead increased at every step. Beautiful verse. Now, this is telling the importance of hearing. So, that is the second installment. So, they started telling him about the Krishna Katha. Hone lagi. Anyone wants to read? Merit Katha बोल. Lord Sri Krishna, the absolute personality of Godhead, is attractive not only in his personal features, but also in his transcendental activities. It is so because the absolute is absolute by his name, fame, form, pastimes, entourage, paraphernalia, etc. The Lord descend to this material world out of his causeless mercy and display his various transcendental pastime as human being, so that human beings attracted towards him become able to go back to Godhead. Men are naturally apt to hear histories and narration of various personalities performing mundane activities that without knowing that by such association or one simply waste valuable time and also become addicted to the three quantities of the mundane nature. Instead of wasting time, one can get spiritual success by turning his attention to the transcendental pastimes of the Lord. By hearing the narration of the pastime of the Lord, one can contact directly the personality of Godhead. And as I explained before, by hearing about the personality of Godhead from within, all the accumulated sins of the mundane creature are cleared. Thus, being cleared of all sins, the hearer gradually becomes liberated from the mundane association and become attracted to the features of the Lord. Narada Muni has also Narada Muni has just explained this by his personal experience. The whole idea is that simply by hearing about the Lord pastimes, one can become one of the associate of the Lord. Narada Muni has eternal life, unlimited knowledge, and unfathomable bliss, and he can travel all over the material and spiritual worlds without restriction. One can attain to the highest perfection of life simply by attentive hearing of the transcendental pastimes of the Lord from the right sources. As Sri Narada heard them from the pure devotees Bhaktivedantas in his previous life. This process of hearing in the association of devotees is especially recommended in the age of oral Kali. Thank you, Prabhu. Thank you, Krishna. All right, amazing वर्स है ये, ठीक है, जिसमें कि इसका थीम चलेगा अभी इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग पे एंड अटेंटिव listening attentively, right? So we have to also listen attentively. Very important. Attentive listening say just by hearing attentively, what has happened is Narad Muni has become Narad Muni, right? Just by hearing. If you see, एक इसमें वर्ड का देखेंगे, we'll pick them. Shraddhaya. So Shraddha, that is the faith. Faith is the most important and the first step in our bhakti, right? Shraddha, sadhu sang, bhajan kriya. Then after doing that, अनर्थ निवृत्ति happens. अनर्थ निवृत्ति starts happening, right? तो उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कि उनके sins start to go away. सेम चीज नारद मुनि में हुई. श्रद्धा थी, साधु संग हुआ, फिर भजन क्रिया उनके साथ बैठ के की, and then अनर्थ निवृत्ति started happening. And then you will see after अनर्थ निवृत्ति goes, what happened is taste for hearing of the personality of God had increased. So that is रुचि. निष्ठा के बाद आता है रुचि, रुचि के बाद आसक्ति,
Asakti, and then Bhav, and then Prema. So these are the stages which one go through, right? So currently Narad Muni has gone past already the sins, right? Because हमने last verse में हमने देखा था कि by eating the remnants of the sages, क्या हुआ था, उनके सारे पाप धुल गए थे. So anarth nivritti stage has been crossed by Narad Muni. In the last verse we have seen that, right? अब वो किस स्टेज पे आ गए? रुचि, रुचि वाली स्टेज पे आ गया. नर्थ निवृत्ति के बाद क्या आती है? निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि. तो नाउ हिज टेस्ट फॉर हियरिंग, हिज टेस्ट फॉर hearing Krishna Katha is increasing at every step. He wants to listen more and more and more. And in the next verse, we'll see he'll go to the next stage, Asakti. Right? तो अगर श्रद्धा नहीं है तो जितना भी रेमेनेंट्स खाते रहो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. चाहे स्पिरिचुअल मास्टर खुद आके आपको कृष्ण कथा दे दे तब भी कोई असर नहीं होगा, राइट? जब तक आप में श्रद्धा नहीं है. तो श्रद्धा इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब नेक्स्ट वर्ड इसमें क्या बोल रहे हैं? अनुग्रह, अनुग्रहेना, by causeless mercy. This we have discussed in the last section, but that was the causeless mercy की first installment. That is for everyone. That sages give that causeless mercy to everyone, but especially to Narad Muni. This is the second installment. Again, he's saying the causeless mercy, anugrihana shravanam manohara. Shravanam is listening, giving the oral reception. Attractive. Manohara is attractive. So now that is their causeless mercy that they started telling Krishna Katha to Narad Muni. So that is their causeless mercy. ऐसा नहीं था कि वो आपस में बैठ के खुद से कृष्ण कथा करने लगे. उन्होंने देखा कि बच्चे में क्वालिटीज हैं. He is very obedient, he is self-controlled, he has served us, and then they started giving him Krishna Katha, right? That is very, very important. So tad vidhi pranipaten pariprashnena sevaya. So you should serve the sages and then listen from them. All right. So Shravanam. So next is Shravanam. Anugrahana Shravanam. Shravanam is the first step as we discussed, right? And again, if we compare with ourselves, हमारी जर्नी कहाँ से, भक्ति की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? By hearing. भक्ति वृक्षा में आए हम, ब्रजेश प्रभु का लेक्चर सुना, started hearing, and then slowly our interest goes up at every step, right? And then and then what happened is we reached where we are right now, correct? So मैं टेम्पल प्रोग्राम देख रहा था, अभी कैलेंडर लेके आए नया, तो उसमें नीचे टेम्पल प्रोग्राम का वो बना हुआ था. आई वाज लुकिंग एट दैट एंड आई वाज मेडिटेटिंग कि यार क्या टेम्पल प्रोग्राम बनाया है. 4:30 बजे सुबह स्टार्ट होती है. इफ यू लुक, 4:30 बजे क्या होती है? अपना गुरु पूजा, गुरु पूजा के बाद नरसिम्हा आरती एंड देन तुलसी आरती. दैट्स इट. 4:30 से 5:10 5:10 तक प्रोग्राम वो वाला खत्म हो जाता है, जस्ट फॉर 30-40 मिनट्स. And then from 5:10 till 7 o'clock, what do? Chanting. Almost 2 घंटे we are giving to chanting. Such कितनी ज़्यादा importance है. And then again, if you see from 7 to 7:30, if you look at the program, you will see 7 to 7:30 में हम again क्या कर देते हैं? श्रृंगार आरती कर लेते हैं, गुरु पूजा कर लेते हैं, ठीक है? 7:30 we close, and from 7:30 to 9 AM 1.5 घंटे की भागवतम क्लास है, which is hearing. 2 hours of chanting, 1.5 hours of listening, hearing, we finish. Can you imagine? मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मतलब अगर तुम देखो तब तुम्हें पता चलता है कि how much listening and chanting we are doing, and this is what Prabhupada has made this morning program, right? So the entire focus is on hearing, chanting. Shravanam Kirtanam. That is the only way forward. This is what Prabhupada is saying here as well. This process of hearing in the association of devotees is especially recommended in the age of quarrel. So hearing is the only way, hearing and chanting are the only ways to get out of this world. And this is what our morning program also tells us, right? So then comes the next thing. What next thing is? Manohara, attractive, right? So अगर हम और कोई यहाँ पे जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि naturally
apt to hear histories and narrations of various personalities performing mundane activities, है ना, किसी राजा रानी की कहानियां बचपन से हम सुनते आ रहे थे, तो वो क्या है कि हमें बट हमें अच्छी लगती थी वो कहानियां, ठीक है। मैं अभिराज को भी जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आए थे तो मैं उसको ऐसी मंडेन कहानियां सुनाता था, बट दैट इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग इज सिंपली वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल टाइम, राइट। उसका कोई फायदा नहीं है। जो मंडेन लिटरेचर हम पढ़ते हैं ना, बोलते हैं ना टुडेज न्यूज इज टुमारोज गार्बेज, कहाँ जाती है वो आज का न्यूज़पेपर, कहाँ जाता है, नेक्स्ट दिन के रद्दी वाले के पास जाता है, ठीक है ना। सिर्फ एक दिन की म्याद होती है उस न्यूज की। So this is what rubbish we put in our head, because anyway वो next day वो bin में ही जाता है वो। So that rubbish we are putting in here. So why we are putting? We are simply wasting our valuable time. This is what Prabhupada is saying. Alright? तो अब मैं विराज को जब फिर धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए, मैं कृष्ण कथा उसको सुनाने लगा, which is very pleasing, और वो खत्म ही उसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो गया रादर उसका, तो वो और ज्यादा और पापा और सुनाओ, राइट। सो हम जो मंडेन हमने जो पढ़ा लिटरेचर वो क्या था, अपना 10th क्लास में हमने मैथ्स पढ़ा है या 11th में मैथ्स पढ़ा है, तो क्या हमारा दिल करता है कभी वो मैथ्स जैसे एग्जाम खत्म होते थे, कभी 10th मान लो अपनी 10th क्लास पास की है, उसके बाद 11th में आ गए हो, 10th क्लास की मैथ्स की बुक उठाने का दिल किया कभी, उसको उठा के फेंक दिया क्या, मतलब दिखे ना मुझे अब कभी 10th क्लास का मैथ मुझे नहीं देखना, 11th क्लास पास कर लिए तो वो मैथ्स मुझे दोबारा नहीं देखना है, राइट। सो वी डोंट want to see look at that mundane literature or mundane जो भी चीजें हैं उसको once again, but this is not the case with Krishna Katha, right? This is the beauty of Krishna Katha. It works on you, it purifies you, right? Radha Rani बोलते हैं कि Radha Rani is never tired of hearing Krishna Katha, right? So we should pray to Radha Rani कि उनकी थोड़ी सी क्वालिटीज हमें भी आ जाए, हमारा भी थोड़ा टेस्ट डेवलप हो जाए like नारद मुनि to hear Krishna Katha, राइट। हम क्या करते हैं कि दुनिया की बातें अगर करते रहोगे ना, तो इस दुनिया की भौतिक जगत की बातें अगर हम करेंगे ना डिवोटी और स्पेशली डिवोटी एसोसिएशन में, तो हम क्या होगा, भौतिक जगत में ही रह जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करनी चाहिए, हमें कृष्ण कथा करनी चाहिए, देन ओनली वी कैन गो देयर, राइट। तो वी शुड नॉट टॉक मंडेन थिंग्स, राइट। वो है ना नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी वर्स है ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उद्रुपस्थ वेगम। सो वाचो वेगम, वी नीड टू लर्न कि क्या बोलना चाहिए हमें, राइट। एंड दैट लोग मौन व्रत रखते हैं, मौन व्रत रख के वो क्या कर रहे होते हैं, फिर पेपर पे लिख लिख के वो दे रहे होते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए वो। तो तुम्हारा माइंड जब तक, अपने माइंड को चुप कराना आना चाहिए, कि जब तक हमारा माइंड नहीं चुप होगा, शांत होगा, तो ऐसे मौन व्रत का कोई फायदा नहीं है। मौन व्रत, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, मौन व्रत होना चाहिए जिसमें तुम कृष्ण कथा कर रहे हो, दैट इज मौन व्रत ओनली, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज हाँ वृष्णि व्रतः, hearing attentively is very very important, and the next is anupadam, every step, each and every word को ध्यान से सुनो, so that helps you in chanting as well। अगर आपने नोट किया हो कि अगर आपने पिछले दिन में भागवतम पढ़ी है या कुछ ज्यादा रीडिंग और लिसनिंग आपकी अच्छी हुई है, हियरिंग अच्छी हुई है लास्ट डे में, तो नेक्स्ट डे की चैंटिंग इम्प्रूव्स। और उसमें भी वो क्या बोलते हैं, चैंटिंग में भी प्रभुपाद ये बोलते हैं ना, लिसन ईच एंड एवरी वर्ड, एवरी स्टेप, अनुपदम, each and every word clearly, hear attentively when you chant. So in chanting, both Shravanam and Kirtanam comes. Kirtanam is you are chanting, and hearing you are hearing at the same time Krishna ke naam. Right? So that is what hearing attentively means here, right? And one what Acharya says is ke जब हम attentively hear करते हैं, so that brings the interest। जो भागवतम का एक्चुअली जो जिस्ट है भागवतम का, भागवतम is nothing but the conversations, right? As we all know, नारद मुनि और ब्रह्मा की कन्वर्सेशन है, शिव जी पार्वती की कन्वर्सेशन है, मैत्री मुनि विदुर की कन्वर्सेशन है, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की कन्वर्सेशन है। तो ये अगर अटेंटिव हियरिंग नहीं हो रही होगी, तो जो स्पीकर है उसका भी एंथुसियाज्म चला जाएगा। सो बोथ लिसनर एंड स्पीकर, दे बोथ शुड बी एंथुसियास्टिक, देन ओनली भागवतम विल बी चर्न्ड आउट। तब भागवतम का असली नेक्टर निकलेगा,
if both are enthusiastic and both are listening and hearing and speaking attentively, राइट। अब परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए बैठे, और कितनी आयरनी है, उन्होंने पानी के पीछे स्टार्ट हुआ था सब कुछ, राइट। उनको प्यास लगी थी तो वो उनके मुनि के आश्रम में गए थे, और फ्रॉम देयर इट ऑल स्टार्टेड एंड ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर फॉर 7 days, राइट। सो दिस इज व्हाट हियरिंग अटेंटिवली मीन्स फॉर अस, राइट। और और मंडेन लिटरेचर का, या वी ऑलरेडी रेड के मंडेन लिटरेचर विल नॉट हेल्प। तो अगर कोई जबरदस्ती पढ़ा भी देगा ना, हम अटेंटिवली नहीं सुन रहे हैं, और कोई अगर मान लो बोलते हैं ना कि यार बच्चे की ट्यूशन रखी थी, बच्चा फिर भी फेल हो गया, जब बच्चे ने पढ़ना ही नहीं है, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करवा सकता, राइट। तो हियरिंग का टेस्ट डेवलप होता है, धीरे धीरे होता है, बट वी नीड टू ऑल्सो पुट एन एफर्ट, वी नीड टू ऑल्सो प्रे कि भगवान मेरी मेरी हेल्प करो ताकि मेरा हियरिंग में टेस्ट आए, बिकॉज इन कलयुग एज प्रभुपाद सेड, hearing and chanting, these are the only two things which can save us, nothing else will save us. We'll discuss more than in our in our next verse, right? Next इसमें क्या टॉपिक बोल रहे हैं कि the whole idea, Narad Muni has just explained by his personal experience. The whole idea is that simply hearing about the Lord pastime, one can become the associate of the Lord. कितनी बड़ी बात लिखी है ये। The whole idea is that simply by hearing, just सुनने से क्या होगा, one can become the associates of the Lord. Such a big thing, isn't it? ठीक है, नहीं तो हमारा क्या है कि Narad Muni has an eternal life, unlimited knowledge, everything comes हमारा, but what we do is we are so much busy in our day-to-day work that we don't listen properly. If we listen properly, this is what will happen. We should underline this. By his personal experience, he said that, right? So, and in Kali Yuga, this is the fastest way. All right. Any questions, any comments, or we'll move to the next one? प्रभु जी, आपने वो नाम क्या बताया परीक्षित महाराज को, जिनके गले में उन्होंने सांप डाला था, वो ऋषि का नाम? ऋषि का नाम तो मैं भूल गया, पर श्रृंगी था उनका बेटा, श्रृंगी मुनि था उनका बेटा जिसने श्राप दिया था, और उस शमिक, हाँ शमिक ऋषि था जिनके गले में सांप डाला था, और उनका बेटा था श्रृंगी जिसने श्राप दिया था। So that's that. All right. तो नेक्स्ट वर्स पे चलते हैं फिर। तस्मिंस्तदा लब्ध रुचेर्महामते प्रिया शवस्य अस्खिलता मतिर्मम ययाहम् एतत्सत् असत्स्वममाया पश्य मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। O great sage, who is saying this? Narad Muni is saying to Vyasdev again. O great sage, as soon as I got the taste of personality of Godhead, my attention to hear of the Lord was unflinching. Now, if you see Ruchi, the taste is turning into unflinching. So, Narad Muni is going from Ruchi state to Asakti state. Right? सुनने के बाद रुचि हुई, रुचि के बाद now unflinching. Now Asakti stage में क्या होता है? You cannot live without hearing about Krishna Katha. You have to, right? And as my taste developed, फिर आसक्ति स्टेज में क्या हुआ? जैसे जैसे उनका टेस्ट डेवलप हुआ, I could realize that it was only my ignorance that had accepted gross and subtle coverings. For both the Lord and I are transcendental. तो इस स्टेज पे he realized the difference between matter and soul. We keep on saying from the very first class, I am not the body, I am the soul.
but that actual realization comes at the stage of asakti, very far, right? बोलने में और actual उसको realize करने में, I could realize. So actual realization में there is a lot of gap. This we'll see now how it happened, right? Anyone wants to read this? मैं read करता हूँ प्रभु जी. Ignorance in material existence is compared to darkness, and in all Vedic literature, the personality of Godhead is compared to the sun. Wherever there is a light, there cannot be a darkness. Hearing of the Lord pastime is itself transcendental association with the Lord, because there is no difference between the Lord and his transcendental pastimes. To become associated with the supreme light is to dissipate all ignorance. By ignorance only, the conditioned soul wrongly think that both he and the Lord are products of material nature. But in fact, the personality of Godhead and the living beings are transcendental, and they have nothing to do with the material nature. When ignorance is removed, and it is perfectly realized that there is nothing existing without the personality of Godhead, then nescience is removed. Since the gross and subtle bodies are emanation from the personality of Godhead, the knowledge of light permit to engage both of them in the service of the Lord. The gross body should be engaged in act of rendering service to the Lord, as in bringing water, cleansing the temple, or making obeisances, etc. The path of archan, or worshipping the Lord in the temple, involve engaging one's gross body in the service of the Lord. Similarly, the subtle mind should be engaged in hearing the transcendental pastime of the Lord, thinking about them, chanting his name, etc. All such activities are transcendental. None of the gross or subtle senses should otherwise be engaged. Such realization of transcendental activities is made possible by many years of apprenticeship in the devotional service, but simply attraction of love for the personality of Godhead, as it was developed in Narad Muni by hearing, is highly effective. Thank you, Prabhu. Oh, again, a very amazing purport by Srila Prabhupada. अभी इसमें क्या बोल रहे हैं? Again, the focus is on attentive hearing. Last में भी हमने वो पढ़ा था, attentive hearing. Now again, my attention to hear. Right? Again, the focus is on that. So the theme is the same. But now what he's saying is, he's saying that my ignorance, because of ignorance, what I was doing, hear, जब हम hear करेंगे तो क्या होगा? Naturally हमें knowledge आएगी. तो knowledge आएगी तो क्या होगा? तो darkness remove होगी. Right? So जैसे हमने is compared to the sun, right? हमने कई बार example सुनी होगी. चैतन्य चरितामृत में है ना वो कि जहाँ कृष्णा वहां नहीं माया अधिकार, राइट? तो जहाँ पे कृष्णा है वहां पे माया नहीं आती. ऐसे ही जहाँ पे सन है वहां पे डार्कनेस नहीं होती. जैसे ही सन आता है डार्कनेस चली जाती है. ऐसे ही लिसन कर करके हमारे में नॉलेज इतनी आ जाएगी कि सारी जो इग्नोरेंस है ना हमारी वो चली जाएगी. क्यों चली जाएगी? लिसनिंग से क्यों जाएगी? बिकॉज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग इज hearing the Lord's pastime itself is Lord. There is no difference between Lord and his pastimes. तो भगवान के नाम में, भगवान के धाम में और भगवान के pastimes में कोई अंतर नहीं है. All are same. So अगर हम भगवान के pastimes सुन रहे हैं तो what we are doing is we are directly associating with the Lord, right? So और knowledge क्यों जरूरी है? हम क्यों ये श्लोका याद करते हैं? Why knowledge is important, right? So knowledge तो बुक्स में है, हम बुक्स को रेफर कर सकते हैं. बट मैं चैतन्य चरण प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि नॉलेज जो बुक्स में है ना, बुक्स में नॉलेज इज इक्वल टू जो आपका पैसा पड़ा है वो बैंक में पड़ा है. तो जब आपको जरूरत है तो बैंक तो बंद हो गया 5 बजे, तो नेक्स्ट डे जाओगे, जाके फॉर्म भरोगे, फॉर्म भर के निकालोगे, तो उसका प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है? तो अब जाके आपको वो पैसा मिलेगा. बट जो नॉलेज आपने सुन ली है बुक्स में नहीं है, जो आपके मेमोरी में है, जो आपके दिमाग में है, दैट इज इक्वल टू योर मनी इन द वॉलेट. सो यू कैन यूज इट इन योर डे टू डे लाइफ.
तो अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं इतना, ताकि हम अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकें, डे टू डे लाइफ में इन चीजों को उतार सकें। दैट इज वाई हियरिंग इज सो मच इम्पोर्टेंट। हियरिंग, अब किसी मैं प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि कहते मेरे पास जब भी कोई ऐसे प्रॉब्लम लेके आता है टेंपल में कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरी उस डिवोटी से नहीं बन रही, मेरा ये नहीं हो रहा है, वट एवर, कहते मैं सबसे पहले उससे पूछता हूँ कि तेरी चैंटिंग और तेरी हियरिंग कैसी चल रही है, क्या ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग हो रही है और क्या हियरिंग प्रॉपर हो रही है। अगर वो नहीं हो रही होती तो रूट कॉज इज डायरेक्टली आइडेंटिफाइड। जिस बंदे की हियरिंग और चैंटिंग अच्छी नहीं है, उसको धीरे धीरे उस मालूम हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। सो दैट इज द बेसिस, दैट इज द बेंचमार्क, हियरिंग एंड चैंटिंग फॉर अ डिवोटी, दैट शुड बी वेरी पक्का, राइट। तो अब क्या है कि उसमें बता रहे हैं कि हाँ, ग्रॉस, अब उसमें वो बता रहे हैं कि मेरे को क्या हुआ, ग्रॉस एंड सटल की बात हो रही है यहाँ पे। तो ग्रॉस हमारी बॉडी किससे बनी है, ग्रॉस एलिमेंट्स एंड सटल कवरिंग, दो कवरिंग है हमारे ऊपर, राइट। तो ग्रॉस कवरिंग कौन सी है, अर्थ, एयर, ईथर, फायर, वाटर, राइट। एंड देन देयर इज अ सटल कवरिंग, मन, बुद्धि, अहंकार। तो हम क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने आप को बॉडी से एसोसिएट करते हैं। दिस इज अवर प्रॉब्लम, वी हैव बीन टोल्ड 100 टाइम्स कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। इवन इसी चैप्टर में, आई थिंक, हाँ इसी चैप्टर में हम बात कर रहे थे ना, जब, या लास्ट चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी की जब हम क्वालिटीज डिस्कस कर रहे थे, कि ही वाज ऑन ए दैट प्लेटफॉर्म के जहाँ पे he cannot distinguish between male and female body, right? Because he was looking, he was operating at the level of soul, soul के level पे operate कर रहे थे वो। Now the same thing here Narad Muni is saying, I was because of my ignorance, तो मैंने अपनी ग्रॉस और सटल बॉडी की कवरिंग को एक्सेप्ट कर लिया था। तो जब हम ये कर लेते हैं तो होता क्या है कि हम अपने आप को बॉडीली कंसेप्शन से आइडेंटिफाई, हम आपको बॉडीली बॉडी से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड स्पेशली विद द सटल बॉडी, राइट। अब मैं आपको डिफरेंस एक बताता हूँ एग्जांपल से। अब किसी का अगर हाथ में कोई प्रॉब्लम है, मान लो फॉर एग्जांपल, तो उसको मैं बोलूंगा जाके कि प्रभु आपका हाथ खराब हो गया, तो वो बोलेगा हाँ मेरा हाथ खराब हो गया, ही विल से, राइट। तो उसने अपने आप को अलग माना और अपने हाथ को अलग माना। अब मैं उसे बोलूंगा कि प्रभु आपकी जो बुद्धि है ना वो खराब हो गई है, तो जैसे ही मैं बोलूंगा कि प्रभु आपकी बुद्धि खराब हो गई है, वो क्या करेगा, वो मेरे थप्पड़ मारेगा, वो लड़ने को आएगा मेरे को, बिकॉज वो हाथ को अपने से इतना एसोसिएट नहीं कर रहा है वो अपने आप को, बट अपनी बुद्धि को अपने से एसोसिएट करता है वो। तो अपनी जो सटल बॉडी है, मन, बुद्धि, अहंकार, अपने आप की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसेप्शन है हमारी मन, बुद्धि, अहंकार की, कि वी आइडेंटिफाई विद इट। तो क्या होगा, और ये क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन विद अस। जैसे जब हम मरते हैं तो हम ग्रॉस बॉडी तो यहीं छोड़ देते हैं, पर हम अपनी सटल बॉडी हम अपने साथ लेके जाते हैं। तो जब हमारा कोई तिरस्कार करता है तो हमें लगता है कि यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, उसने मेरे को ऐसा किया, बट हमें क्या हो रहा होता है, वो हमें ये बोलना चाहिए कि उसने मेरे अहंकार को हर्ट किया, राइट। ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अस एंड अवर सटल ऑब्जेक्ट्स जो हमारी बॉडी के अंदर है, जिसकी जो हमारी बॉडी को कवर किया हुआ है, जिसने हमारी सोल को कवर किया हुआ है, राइट। तो जितने भी रिलेशंस बेस्ड ऑन बॉडीली कंसेप्शन होंगे, दे वोंट गो फॉर अ लॉन्ग टाइम बेसिकली, राइट। क्यों, क्योंकि हम वो किसके बेस पे होंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन के बेस पे होंगे, बॉडीली कंसेप्शन के बेस पे होंगे। एक बार इसका टेस्ट कर सकते हो आप, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनके रिलेटिव्स के साथ आप क्या करो, उस जो अगर जो भौतिक उसमें है, राइट, तो उसका अगर वो सेंस ग्रेटिफिकेशन का रिलेशनशिप है आपका, तो यू ट्राई टू स्टॉप दैट, एक बार उसकी सेंस ग्रेटिफाई मत करो। देन यू विल सी, जब आप सेंस ग्रेटिफाई नहीं करोगे, देन यू विल सी के उसका रिएक्शन क्या होगा। प्रभु बता रहे थे, लेक्चर में सुन रहा था मैं, तो वो बोल रहे थे, कहते मेरे फादर शराब पीते थे, तो कहते उनको बोला, कहते तो उन्होंने एक बार बोल दिया अपने फ्रेंड्स को कि तुमने मुझे पिलानी है पिला दो, बट मेरे से मत एक्सपेक्ट करना कि मैं तुम्हें कल पिलाऊंगा। कहते जब उन्होंने ये बोला, उनके फ्रेंड्स ने उनको बुलाना बंद कर दिया, राइट। सो दिस इज व्हाट अवर रिलेशनशिप्स आर, कि जब आप बोल दोगे कि मैं तेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन में मैं तेरे साथ नहीं हूं, देन यू विल सी देयर बिहेवियर, देन यू विल रियलाइज कि दिस इज नॉट वर्थ इट,
आई एम नॉट सेइंग कि अपने रिलेटिव्स को, अपने हस्बैंड वाइफ को प्यार मत करो, डू दैट, बट don't become a part of their sense gratification, don't fuel that at least. right? तो उस इग्नोरेंस से हमें बाहर आना है। तो जो कि नारद मुनि आए, कैसे आए? बाय डूइंग कृष्ण कथा, राइट? तो जैसे मैटर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम मैटर से इतने ज्यादा एसोसिएट करते हैं, जबकि मैटर में ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट ब्लड एंड बोन्स। ठीक है? तो मैटर क्या है? आकृति और प्रकृति, ये दो चीजें हैं ना, कि कृष्णा की आकृति और प्रकृति दोनों सुंदर हैं। बट जो हमारी है वो आकृति और प्रकृति में बहुत फर्क है। हमारी आकृति सुंदर हो सकती है, समझ में आ रहा है? आकृति सुंदर कैसे हो सकती है कि हाँ कोई बंदा सुंदर है, ब्यूटीफुल है, बट वो अगर वो जब मर जाता है तो वो किस में डाइल्यूट होता है? उन्हीं पंच महाभूत में, अर्थ, एयर, ईथर, वाटर, फायर। अगर किसी ने बहुत बढ़िया बंगला बनाया हुआ है, राइट, बहुत बढ़िया बंगला है, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, या पर अगर मैं उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो एंड में क्या बचेगा? मलबा, जो कि क्या होगा? मिट्टी, राइट? तो वो बना किस चीज से है? जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, दोज आर नॉट अट्रैक्टिव, वो अट्रैक्टिव बनते हैं जब वो बन जाते हैं। तो ऐसे ही हम हैं। ऐसी पेंटिंग की एग्जांपल भी थी, राइट? कि पेंटिंग, अगर मोनालिसा की पेंटिंग मैं दिखाऊंगा तो सबको बड़ी अच्छी लगेगी, बट एक्चुअल में क्या है? वो कुछ रंग अगर मैं आपको दिखाऊं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तीन कलर आपके सामने रख दूं, तो क्या आपको अच्छे लगेंगे? वो नहीं लगेंगे। सेम वे इट इज जस्ट, हमारी अट्रैक्शन हमारी किस मैटर के प्रति क्यों होती है? क्योंकि हम उसकी वो देख रहे हैं, आकृति देख रहे हैं। जब उसकी प्रकृति में जाके देखेंगे, हमें पता चलेगा कि प्रकृति में तो उसका कुछ भी नहीं है, दैट इज जस्ट डेड मैटर। तब हमारा वहां से डिटैचमेंट होगी, और तब हमें पता चलेगा कि मैं डिफरेंट हूँ, और जो मैटर है, जो डेड मैटर है, वो डिफरेंट है। और वो कब आएगा? जब हम कृष्ण कथा सुनेंगे। दिस इज व्हाट नारद मुनि सेइंग कि एज माय टेस्ट डेवलप, तो क्या हुआ? वो ग्रॉस और सटल कवरिंग्स हट गई, तब मुझे पता चला कि मैं और भगवान सेम है इन टर्म्स ऑफ सोल। वी आर बोथ सोल, ऑल्दो सोल ही इज सुपर सोल, बट वी आर बोथ सच्चिदानंद, राइट? So, राइट, तो इसमें और क्या बोल रहे हैं वो? हाँ, द ग्रॉस बॉडी शुड बी एंगेज्ड। हाँ, अब वो क्या बोल रहे हैं? द ग्रॉस बॉडी शुड बी एंगेज्ड इन एक्ट्स ऑफ रेंडरिंग सर्विस टू द लॉर्ड, राइट? The path of archana and worshipping the Lord in temple and involves engaging one's gross body in the service of the Lord. तो अपनी बॉडी को हम सर्विस में लगाते हैं। हम क्या बोलते हैं कि मैं सर्विस करके आया हूँ, मैं खिचड़ी बना के आया हूँ टेम्पल में, राइट? मैं फ्रूट कटिंग करके आया हूँ। बट वी शुड से कि हमारी बॉडी, नॉट सेइंग इज वन थिंग, बट वी शुड अंडरस्टैंड कि हम वी आर एंगेजिंग अवर ग्रॉस बॉडी इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड when we go to temple, when we clean the temple, when we pay obeisances, like that. Similarly, now this is very important. Similarly, the subtle mind should be engaged in hearing the transcendental pastimes of the Lord and thinking about them, chanting His name, etc. अब सटल पे आते हैं। ग्रॉस बॉडी तो इज क्लियर, राइट? कि ग्रॉस बॉडी है, ग्रॉस बॉडी को यूज किया, सर्विस किया, टेम्पल में गया, मेकिंग ओबेसेंसेस किया। नाउ अब सटल बॉडी का क्या है? सटल बॉडी को कैसे प्यूरिफाई करोगे? सटल बॉडी की कवरिंग कैसे हटाओगे? सिर्फ दो चीजें, hearing transcendental pastimes and thinking about them and chanting his name. Smaranam, chanting and hearing. These are the only ways by which you can cut that covering of subtle body, which is very, very difficult, very, very important as well. क्योंकि ग्रॉस चीजें जनरली आप देखो कि ग्रॉस चीजें छोड़नी या ग्रॉस चीजों को हटाना इज इजी, बट सटल चीजों को हटाना बहुत मुश्किल होता है। अपने ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की एग्जांपल ले लो, ठीक है? मीट ईटिंग, मीट ईटिंग इज इजी, मीट ईटिंग हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, रिलेटिवली इजी है ग्रॉस। अब इसका मैं सटल उस पे जाऊंगा, इसका जो क्या है, इसका प्रिंसिपल, सटल प्रिंसिपल, अहिंसा, राइट? अहिंसा, अब अहिंसा करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, अहिंसा ना करना इज वेरी डिफिकल्ट। हम दिन में कितनी बार हिंसा करते हैं, राइट? हिंसा इज नॉट ओनली के मारना, हिंसा इज ऑन द माइंड लेवल एज वेल,
कि तुम किसी को हर्ट कर दिया, किसी को बोल दिया, बच्चे को डांट दिया, कुछ भी कर दिया, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ये आईडीसी में हमने सबने ये सुना होगा, राइट? अनिरुद्ध प्रभु ने जब लिया था, वो चार चार प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए थे, उन्होंने उनका अगर संस्कृत में जाके मीनिंग देखो तो दैट इज टोटली डिफरेंट, दैट वर्क्स ऑन द ट्रांसिट ऑन द सटल लेवल। अब गैम्बलिंग, गैम्बलिंग इज ओके, नो वन डज गैम्बलिंग एज सच, ठीक है, डिवोटी नहीं करते, बट गैम्बलिंग का एक्चुअल अगर आप सटल मीनिंग में जाओ तो क्या है? सत्यम। अब सत्यम, कौन सत्य बोलता है? क्या हम बोल पाते हैं? टू एन एक्सटेंट यस, बट यस और नो, आई डोंट नो। क्या हम 100% सच बोलते हैं ऑल द टाइम? कैन बी। एंड आई रेज दैट विद अनिरुद्ध प्रभु एज वेल इन द आईडीसी क्लास। मैंने क्लास में पूछा, मैंने कहा प्रभु ये सत्यम, ये तो मतलब मैं तो बोल ही नहीं पाता सत्य। तो कहते हो सत्य नहीं बोलता? कहते हैंड रेज करो, कौन कौन नहीं सत्य बोलता है क्लास में। तो सब लोगों के हाथ खड़े हो गए। बोलने के ऑफिस में कहीं ना कहीं अगर इफ यू एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट करोगे, अंदर झांक के देखोगे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? तो इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन ठीक है, आप शराब छोड़ सकते हो, सिगरेट छोड़ सकते हो, बट चाय छोड़ना, ओ वेरी डिफिकल्ट, कॉफी छोड़ना वेरी डिफिकल्ट, राइट? उसमें मीट ईटिंग में प्याज लहसुन छोड़ना, सटल, वेरी डिफिकल्ट। सो सटल चीजें जनरली, तो कहने का पॉइंट क्या है कि सटल चीजें छोड़नी आर डिफिकल्ट, एंड दैट कैन, दो सटल कवरिंग कैन गो अवे ओनली बाय चैंटिंग हिज नेम and by hearing his transcendental pastimes. So again, so much hammering, I am hammering that point again and again because this is what Srila Prabhupada is saying again and again, right? और क्या होता है कि जैसे जैसे हम वो करते हैं, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा? नन ऑफ द ग्रॉस एंड सटल सेंसेस शुड बी एंगेज्ड, अदरवाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम क्या करते हैं, हम उनको एंगेज करते रहते हैं, तो होता क्या उससे? फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल बताते हैं आचार्य कि खीर, खीर में अगर मैं केरोसिन ऑयल डाल दूं, खीर बनाई मैंने, उसके अंदर मैंने केरोसिन ऑयल डाल दिया, तो पूरी वो जो खीर है उसमें कौन किस चीज की स्मेल आएगी? केरोसिन ऑयल की स्मेल आएगी। अगर मैं वाइस वर्सा करूं, अगर मैं केरोसिन ऑयल लूं, उसमें थोड़ी सी खीर डाल दूं, 1 चम्मच खीर डाल दूं, तो क्या स्मेल आएगी? खीर की आएगी? स्मेल नहीं आएगी। तो सेम वे हम इतने ज्यादा हमने अपनी ग्रॉस और सटल सेंसेस को एंगेज किया हुआ है सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इतने सालों की तपस्या हमने करी है, तपस्या आई एम सेइंग सरकास्टिकली, राइट? इतने सालों की हमने मेहनत करी है कि कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन करें, कैसे करें, हर चीज को कैसे भोग 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 भोग। उसी वजह से ही हम आज यहाँ पर आए, जो जो हमारी हालत है, नित्य बद्धा बने, नित्य बद्धा, वी आर नित्य बद्धा, एटर्नली, एटर्नली वी आर कंडीशनड from time immemorial, right? So that is the reason why is happening that? Because we are engaging the subtle and gross senses. So none of the gross and subtle senses should be otherwise engaged. They should be engaged only gross senses kisme? By going to temple, cleaning the temple, making obeisances and all, and subtle chanting, hearing, right? एंड में अगेन वेरी वेरी एक एक लाइन श्रील प्रभुपाद की, लाइक वी कैन डिस्कस फॉर लाइक मिनट्स if not hours, right? Such realization of the transcendental activities is made possible by many years of apprenticeship in the devotional service. Now this but is very important. क्या बोल रहे हैं कि बहुत बहुत सालों की डिवोशनल सर्विस जब हम करेंगे तब जाके ये रियलाइजेशन आएगी, लेकिन simply attraction for the love of the personality of Godhead as it was developed by Narad Muni by hearing is highly effective. जो इतने सालों लग जाते हैं लोगों को डिवोशनल सर्विस करते 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 करते, that is equal to, and not even equal to, that is less than equal to hearing as developed by Narad Muni. Such a powerful statement, right? इवन कृष्णा भी भगवत गीता 7.19 में बोलते हैं, बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो
बहुनाम जन्मनान्ते, बहुत सारे जन्म बीत जाते हैं, तब जाके टेस्ट डेवलप होता है of acquiring the knowledge, and that too स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा is very rare, right? So hearing is the fastest and the best way. This is what is the gist of these two verses, right? और मुझे भी ये क्वेश्चन एक्चुअली आता था, और मैंने ये पूछा भी, अभी अर्जुन सखा प्रभु आए थे यहाँ सैटरडे मॉर्निंग भागवतम क्लास में, जो यहाँ अपने वॉलेस एवेन्यू में होती है, पॉइंट ग्रुप में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा प्रभु यहाँ पे इस सेंटर की एग्जांपल देके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा प्रभु यहाँ पे कोई बंदा खाना बना के लेके आ रहा है, ठीक है, वो भी सेवा कर रहा है, दैट इज डिवोशनल सर्विस। कोई बंदा यहाँ पे आके सेटअप कर रहा है, कुर्सियां लगा रहा है, कोई बाद में वैक्यूम क्लीनर कर रहा है, कोई आके भागवतम दे रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, तो दीज ऑल आर द सर्विसेज, राइट? तो मैंने बोला कि क्या ये सर्विसेज सब बराबर है? तो आंसर क्या आएगा? यस, ऑल दी सर्विसेज आर बराबर, ऑल दी सर्विसेज आर इक्वल, राइट? देयर इज नो इशू इन दैट। बट देन ही सेड बट, राइट? ये वाला बट फिर उन्होंने बोला, बट ही सेड कि कृष्णा को अट्रैक्ट करता है वो जो उसकी प्रीचिंग करता है, जो कृष्ण कथा करता है, दैट अट्रैक्ट्स कृष्णा द मोस्ट, राइट? एंड सो बेसिकली हियरिंग and speaking, both are the topmost, that simply attraction of love for the personality of Godhead. So this is what attracts the Krishna the most. So this is the gist basically. Does it make sense? तो यहाँ से आज का जो की टेक अवे है फॉर मी एटलीस्ट इज के लिसनिंग, हियरिंग एंड हियरिंग अटेंटिवली, नॉट ओनली जस्ट, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आया होगा और मैंने यार पूछा, हाँ, अस्खलिता, अनइंटरप्टेड अटेंशन, स्खलित, स्खलित, भूस्खलन सुना है ना? भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड, तो ये स्खलन वहां से आए वर्ड। अस्खलिता मति मीन्स माइंड, तो हमारा जो माइंड है ना वो फिसलता रहता है। हियरिंग करेंगे, अब मैं भी लेक्चर लगाता हूँ, उसके बाद मैं कहीं और ही पहुंच जाता हूँ। तो मैंने जगन्नाथ राम प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये क्या करें? मैंने कहा लेक्चर लगाता हूँ तो बाहर वॉक पे करने जाता हूँ। तो उन्होंने बोला, कहते भाई कम से कम 45 मिनट्स की जो लिसनिंग है ना, वो दैट शुड बी इन अ क्लोज रूम, जस्ट लाइक चैंटिंग। यू शुड नॉट रोम अराउंड व्हाइल लिसनिंग, बिकॉज रोम अराउंड करोगे थॉट कहीं का कहीं चले जाएगा। तुमने बोल तो दिया, हाँ प्रभु मेरी तो हियरिंग हो रही है भाई, मेरी तो 1 आवर की हियरिंग है, पर उस हियरिंग में अटेंटिव हियरिंग कितनी है, अंदर कितना एब्जॉर्ब कितना हुआ है, दैट इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस, राइट? तो अब उनका क्या हो रहा है, नारद मुनि का अस्खिला मति, तो मति में इधर उधर नहीं, फिसल नहीं रही है उनकी मति, अब आसक्ति पूरी हो गई है और मति इधर उधर नहीं जा रही है। तो जब मति इधर उधर नहीं जा रही है तो क्या हो रहा है, माया एंटर नहीं कर पा रही है, सिर्फ कृष्णा ही आ रहे हैं माइंड में। सो दैट इज ऑन द आसक्ति लेवल। सो दिस इज व्हाट वी शुड आल्सो स्ट्राइव फॉर, के हमारी मति अस्खलिता नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट, एनी doubts, any questions? We'll stop here. I think it's too much for today. All clear? All right then. चलो, we'll stop here. श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।